جوار کے آنے والے مسلمانوں، اگر معصوم بچوں کا مسجد اقصی کا نقشہ آپ نگاہوں کے سامنے ہوگا تو آپ کا دل بولے گا، دل تک بات پہنچے تو آپ بولیے گا میرے ملت کے نوجوان سپاہیوں، بات وہاں تک پہنچی، معصوم بچے کو دیکھ کر کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، آپریٹر صاحب آواز بڑھا دیں، کسی نے کچھ کہا تو سلمان کے دل نے بولا کھلبلی ایسی، کھلبلی ایسی، کھلبلی ایسی تبسم کی بچا رکھی ہے جیسے اصغر نے تلوار اٹھا رکھی ہے، کھلبلی ایسی، کھلبلی ایسی تبسم کی بچا رکھی ہے جیسے اصغر نے تلوار اٹھا رکھی ہے۔ اے فلسطین کے بچوں، اے فلسطین کے بچوں، اے فلسطین کے بچوں، تمہیں کرتا ہوں سلام، تم نے بنیاد یہودی کی ہلا رکھی ہے۔ تمہیں کرتا ہوں سلام، تم نے بنیاد یہودی کی ہلا رکھی ہے۔ تو سالارپور کا مسلمان نہیں اور تمام تر یہاں کے عاشق بولتے ہیں نہ ہم جاپان والے ہیں، نہ ملک چین والے ہیں، نہ ہم جاپان والے ہیں، نہ ملک چین والے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے دین والے ہیں۔ اگر بیت المقدس پر، اگر بیت المقدس پر ذرا سی آنچ آئی تو پکڑ کر چیر دیں گے، ہم صلاح الدین والے ہیں، پکڑ کر چیر دیں گے، ہم سلامت رکھے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ سنیں سنیں سنیں، عاشق سنتا ہے، عاشق مچل رہا ہے یار، سالارپور کا نہیں یہاں کے لوگ مچل رہے ہیں۔ اور میں جانتا ہوں جب مسجد اقصی کی بات آتی ہے، معصوم بچوں کی بات آتی ہے تو مسلمان دل سے بولتا ہے، دل کی آواز سے، سب کی آواز سلمان رضا کی زبان میں آپ کہتے ہیں نہ ہم جاپان والے ہیں، نہ ہم جاپان والے ہیں، نہ ملک چین والے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے دین والے ہیں۔ اگر بیت المقدس پر، اگر بیت المقدس پر ذرا سی آنچ آئی تو پکڑ کر چیر دیں گے، ہم صلاح الدین والے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم صلاح الدین والے۔ بس ایک شعر ہوگا، پھر علامہ ارشد صاحب کی پلس ثقافی کی تقریر ہوگی، اس کے بعد جب بڑے لوگ بیٹھے ہوں تو چھوٹوں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ اگر آپ سے یہ بتایا جائے کہ یہ بتاؤ ہندوستان نبی کے نام پر گردن کٹوانی تو کتنے لوگ کٹوائیں گے؟ جن کو کٹوانا وہی بولے گا، اگر کوئی بولے گا نہیں مجھے بڑا افسوس ہوگا۔ میں بہت پسند کرتا ہوں، بھائی دعا فرما رہے ہیں اللہ سلامت رکھے تمام تر یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، میں سب کو تو جانتا نہیں ہوں، کبھی اگر انشاءاللہ موقع ملا تو میں سب کی بارگاہ میں ادباً سلام پیش کروں گا۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھائیں، پرچم عباس بنائیں۔ اگر آپ کے گھر میں امام اصغر کے نام کا صدقہ جلتا چولہا جلتا ہے، اگر آپ کے گھر میں امام حسین کا صدقہ جلتا ہے تو ایک ہاتھ آقا حسن کے نام پر، ایک ہاتھ آقا حسین کے نام پر اٹھائیں اور محبت کے ساتھ پورا مجمع فل ایمانداری کے ساتھ کہہ دے لبیک یا رسول اللہ، اور ایک مرتبہ کہیں لبیک یا رسول اللہ۔ تو سنیں الہی ہم پر یہ، الہی ہم پر یہ احسان کر دیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا نبی کے نام پر گردن کٹوانا چاہتے ہیں، بھائی طارق صاحب تمام تر علماء کرام بیٹھے ہوئے، ان کے قدم ناز سے جو گرد و غبار نکلے گی اپنی نظامت کا سرما بنا کر کے آپ تک پہنچ رہا ہوں، آپ بھی سنیں گے اور انشاءاللہ مچلیں گے۔ الہی ہم پر یہ احسان کر دیا جائے، ہم کو مدینے کا مہمان کر دیا جائے، الہی ہم پر یہ احسان کر دیا جائے، الہی ہم پر یہ احسان کر دیا جائے، ہم کو مدینے کا مہمان کر دیا جائے۔ نبی کے نام، نبی کے دین پر اگر سر کی ضرورت ہو، عاشق بول دے بات آگے بڑھ جائے، نبی کے دین کو اگر سر کی ضرورت ہو، نبی کے دین کو اگر سر کی ضرورت ہو، ہمارے نام کا بھی اعلان کر دیا جائے۔ بے شک، سبحان اللہ، ان کو اگر سر کی ضرورت ہو، ہمارے نام کا بھی اعلان کر دیا جائے۔ ہم اپنے معصوم سے ارمان بھی دے سکتے ہیں، ہم اپنے غصے کو پہچان بھی دے سکتے ہیں، اس قوم کا ہر بچہ صدا دیتا ہے، ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، ہم محمد کے لیے
جان بھی دے سکتے ہیں۔ بلا تاخیر اب آئیے حضرات، خطیب اعظم ہندوستان، زینت مسند درس و تدریس جامع معقول منقول حضرت حضرت علامہ مولانا ارشد صاحب قبلہ ثقافی کی بارگاہ ناز میں عریضہ پیش کرتا ہوں کہ آئیے ویلکم، سواگت ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان علامہ ارشد صاحب قبلہ ثقافی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہے جن کی محفل، ہے جن کی محفل، وہی آ رہے ہیں، ہٹو راستہ دو، علی آ رہے ہیں، ہے جن کی محفل وہی آ رہے ہیں، ہٹو راستہ دو، علی آ رہے ہیں۔ حسین و حسن کی محفل ہے جس میں نبی فاطمہ اور علی آ رہے ہیں، نبی فاطمہ اور علی آ رہے ہیں، نبی فاطمہ اور علی آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ ارشد صاحب قبلہ ثقافی، نعرہ تکبیر، حیدر 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 بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، ایک علی کے عشق کا نعرہ کتنے شجری کھول رہا ہے۔ ارے جب اسٹینڈ میں لگایا تو نہیں بیٹھے میرے بہت جگہ یہی تو بیٹھ جاؤ نا۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز موقر محتشم معدب علماء ملت اسلامیہ، عزیز بچوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلامی رشتے کی میری ماں اور بہنوں، فرسٹ آف آل I would like to convey the greeting of Islam. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. It means Allah mercy and peace be upon you. Praise be to Allah, sustainer of His word, and His blessing on Prophet Muhammad, peace be upon him, his leader, progeny and companions, whom Allah set about in Holy Quran. We did not send you but mercy for all creatures. Alhamdulillah, Alhamdulillah, الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على هادينا إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه الذي مضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص اور عقیدت و محبت کے ساتھ، جسے اپنے نبی سے جتنی محبت ہے، محبت کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، بڑا خوبصورت آج کا یہ پروگرام ہے اور بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ جلسہ اپنی کامیابی کی منزلوں کی طرف رواں دواں ہے. لائک مبارکباد ہے مجاہد اہل سنت حضرت علامہ انوار المصطفیٰ صاحب قبلہ مصباحی. اللہ ان کی محنت کو، کاوش کو اور کمیٹی کے تمام افراد کی محنتوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. دیکھیں، جس ذات کے لیے آپ سب کی نگاہیں منتظر ہیں اور یہ اتنے کیمرے والے جس ذات کے لیے خصوصی طور پر چل کر کے آئے ہیں، تقریباً 18-20 کیمرے والے ہیں،
जिन्हें दुनिया खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब दौरा हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला के नाम से जानती है, वो बस तशरीफ लाने ही वाले। इंशाअल्लाह हमें भी सुनना है और आप सबको सुनना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा ले। थोड़ी देर के लिए मैं आप सबके सामने हाजिर आया हूँ। स्टेज पर मेरे बहुत सारे अहबाब तशरीफ रखते हैं, सबके नामों को मैं जानता हूं। अगर नाम ले लेकर के सलाम अर्ज करता तो जो मुझे वक्त दिया गया है मेरा वक्त उसी में खत्म हो जाता, इसलिए कि वक्त बड़ा कम है, वक्त की तंगदामनी और तंगदस्ती है। और यहाँ पर वक्त दामनगीर नहीं बल्कि गर्दनगीर है, वक्त की किल्लत, वक्त बड़ा कम है। मैं चाहता हूँ जो वक्त मुझे दिया गया है उसी वक्त में मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूँ, और उसके बाद मेरे बाद जो हजरात तशरीफ लाएंगे हमें और आपको उन्हें मोहब्बत से सुनना है। अगर आपका सुनने का कुछ मिजाज है और मोहब्बत से आप बैठे हैं तो जरा अकीदत से हाथों को उठा करके एक मर्तबे बोले या रसूल अल्लाह। वो जो लोग अंधेरे में खड़े हुए हैं जिनका चेहरा तो मुझे नजर नहीं आ रहा है लेकिन उनका वजूद मुझे जरूर नजर आ रहा है, वो भी एक मर्तबे मचल करके बोल दे सुभान अल्लाह। जरा आप मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा गौर करें, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। देखें अल्लाह तबारक व तआला के हम पे और आप पे बेशुमार एहसानात है। गौर करें, अगर हम और आप अल्लाह के एहसानात को गिनना चाहे हमारी और आपकी जिंदगियां खत्म हो सकती है, लेकिन हम अल्लाह के एहसानात को नहीं गिन सकते हैं। आप सोचेंगे अल्लाह के एहसानात क्या है, तो जरा आप देखें, ये जो आपको यूनिवर्स नजर आती है, ये जो आपको कायनात नजर आती है, ये जो आपको आलम नजर आता है, ये जो आपको दुनिया नजर आती है, इस कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। और इस कायनात में आप देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकरीबन 18,000 से ज्यादा मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह ने उनकी तख्लीक फरमाई है। जरा अल्लाह के एहसानात को आप देखें कि अल्लाह ने हम पे और आप पे एहसान क्या किए हैं, अल्लाह ने हम पे और आप पे फजल क्या किया है। 18,000 से जायद अल्लाह की मखलूकात है, लेकिन अल्लाह का आप एहसान देखिए कि इन तमाम मखलूकात में से जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको दुनिया में पैदा किया तो जो मखलूक अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, जो मखलूक अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब है, जो मखलूक अल्लाह को सबसे ज्यादा अजीज है, जिसे इंसान कहा जाता है, अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बना के पैदा किया। जरा आप दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, अगर अल्लाह आपको दरख्त बना के पैदा कर देता क्या कर लेते आप? अगर अल्लाह चाहता तो आपको आसमान में सितारा बना करके कहीं नस्ब कर देता, क्या कर लेते आप? अगर अल्लाह चाहता तो आपको जानवर बनाता, अगर अल्लाह चाहता तो आपको पहाड़ बनाता, अगर अल्लाह चाहता तो आपको जमादात बनाता, अगर अल्लाह चाहता तो आपको नबातात बनाता, अगर अल्लाह चाहता तो आपको हैवानात बनाता। लेकिन ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें और आपको इस कायनात में पैदा किया तो इंसान बना के पैदा किया। जरा मुझे बताएं, तवज्जो सब मेरी तरफ करें, ये बताएं अल्लाह को आपने कोई दरखास्त लिखी थी? नहीं, कोई एप्लीकेशन लिखा था कि अल्लाह इंसान बना के पैदा कर दे? ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने आपको इंसान बना के पैदा किया। अगर अल्लाह चाहता तो आपको चौपाया बनाता, अगर अल्लाह चाहता तो आपको जानवर बना के पैदा करता। ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बना के पैदा कर दिया है। अगर आपको समझ में ना आया हो कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बना के पैदा किया, ये अल्लाह का हम पे और आप पे कितना बड़ा फजल है, तो आपको मैं एक मिसाल से समझा देता हूँ। तवज्जो रखें, जरा मोहब्बत से मिलकर के बोले सुभान अल्लाह, जरा बोले या रसूल अल्लाह। जरा तवज्जो करें, मेरी गुफ्तगू को गौर से आप सुने। देखिए अल्लाह ने इंसान बनाया, ये अल्लाह का कितना बड़ा फजल है। अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं जिनको दुनिया आरिफ बिल्लाह हजरत बायजीद बुस्तामी के नाम से जानती है। ये फरमाते लोगों सुनो, इनकी सवारे हयात में और इनकी तारीख में और इनकी जिंदगी के बारे में जब उलमा ने कलम उठाया है तो उलमा फरमाते हैं ये हजरत बायजीद बुस्तामी है, अल्लाह के बहुत बड़े वली है। इतने बड़े वली है कि आप अपनी माँ की कोख में थे और आपकी माँ कहती है लोगों शायद तुम्हें ये लगता है कि मेरा बेटा बायजीद जब दुनिया में आया है आने के बाद वली बना है, ऐसा नहीं है। मेरा बेटा मेरी कोख में था, उसी वक्त मुझे एहसास हो गया था कि ये जो बच्चा दुनिया में आने वाला है ये कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि ये अल्लाह का वली होगा। पूछा गया कैसे, तो फरमाती जब मेरा बेटा बायजीद मेरे पेट में था, मेरी कोख में था, जब मैं हाथ में कोई हराम लुकमा लेती थी तो मेरा बेटा अंदर से हरकत
करने लगता था, अपने पैरों को मारता था। मैं समझ जाती थी कि ये लुकमा हराम का है। आप फरमाती हैं लोगों सुनो, ये मेरा बेटा मादरजात वली है, ये मेरी कोख में था, अल्लाह ने इसे विलायत अता कर दी थी, ये मेरे पेट में था, अल्लाह ने इसे वली बना दिया था। देखे हजरत बायजीद है, जरा आप समझे, अल्लाह ने आपको इंसान बनाया है, ये अल्लाह का कितना बड़ा फضل है। हजरत बायजीद है, जब आप अपनी गली से निकलते हैं, आपकी गली में कुत्ता रहता है, जब भी हजरत बायजीद निकलते ये कुत्ता आपको देख करके भौंकता, जब भी ये कुत्ता देख करके भौंकता हजरत बायजीद रुक जाते और रुक करके आप ज़ारो कतार रोने लगते, फूट फूट के रोने लगते, आप आहो बका करते, आप आवाज के साथ में रोते, आप दिल मिला जाते, आप दिल मिला जाते, आप रोने लगते। जब कई मर्तबे ऐसा हुआ, एक मर्तबे आपके मुरीदों ने, आपसे मोहब्बत करने वालों ने आपसे पूछा बायजीद जरा आप मुझे एक बात का जवाब दे दे, आप अल्लाह के इतने बड़े वली हैं, लेकिन ये मामूली जानवर है जिसे कुत्ता कहा जाता है, ये जब आपको देख के भौंकता है आप रोने क्यों लगते हैं? क्या आपको इससे डर लगता है? क्या आपको इससे खौफ आता है? तो हजरत बायजीद कहते हैं लोगों सुनो, मैं इस कुत्ते से डरता नहीं हूँ, मुझे इससे खौफ नहीं आता है। सुनो, जब ये मुझ पे भौंकता है तो मैं रोता इसलिए हूँ कि ये कुत्ता मुझ पे भौंकता नहीं है, बल्कि ये मुझसे अपनी जबान में कहता है कि बायजीद मुझे एक सवाल का जवाब दे दे कि तेरी ऐसी कौन सी नेकी थी कि जिस नेकी की बुनियाद पर अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जिस गुनाह की बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा, खतीबे हिंदुस्तान अल्लामा अरशद साहब किबला सकाफी, नारे तकबीर। समझ में आ रही है बात? देखें हजरत बायजीद फरमाते हैं लोगों, अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है कि मैं इसकी जबान को समझता हूँ, अल्लाह ने मुझे वो कुदरत दी है कि मैं इसकी लैंग्वेज को, मैं इसकी गुफ्तगू को समझता हूँ। और ये मुझसे कहता है बायजीद अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, तूने कौन सी नेकी की थी? और अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया था कि गलियों में भटकने वाला, वो के मारे खाने वाला, दर दर से भगाया जाने वाला, अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना के पैदा कर दिया। आप जरा तवज्जो कर ले, आप अपने दिल को आप मुझसे करीब करें, अपनी तवज्जो को आप मुझसे करीब करें। हजरत बायजीद फरमाते लोगों सुनो, ये कुत्ता बाद में मुझे जवाब देता है कि बायजीद अल्लाह ने तुझे इंसान बना के पैदा किया है, ये तेरी इबादतों का सिला नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का फضل है कि अल्लाह ने तुझे इंसान बना के पैदा कर दिया है। अगर तू अपने सर को सजदे में रख दे और क़यामत तक अल्लाह की इबादत करता रहे तो अल्लाह के एक एहसान का बदला कि अल्लाह ने तुझे इंसान बना के पैदा किया है, इस एहसान का बदला तू अदा नहीं कर सकता। आप देखें अल्लाह ने आपको इंसान बना के पैदा कर दिया, कि अल्लाह का कितना बड़ा फजल है। और सिर्फ इंसान बना के पैदा नहीं किया है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको मुसलमान बनाया है। और करम वालाए करम यह है कि अल्लाह ने हमें और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। आप देखें अल्लाह के कितने एहसानात हैं। हुजूर गौसे आजम फरमाते लोगों सुनो, जब तुम सांस लेते हो ना, जैसे ही सांस लिया करो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, जैसे ही सांस बाहर किया करो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। इसलिए कि अल्लाह चाहता है तो सांस तुम्हारे अंदर जाती है, अल्लाह चाहता है तो सांस तुमसे बाहर आती है। अगर अल्लाह ना चाहे तो ना ये सांस अंदर आ सकती है ना सांस बाहर जा सकती है। देखें हम और आप ऑक्सीजन लेते हैं, ये अल्लाह का कितना बड़ा फल है। जरा तवज्जो करें आप, अभी ये पास्ट की बात है, बिल्कुल माजी करीब की बात है, अभी चंद दिनों पहले की बात है और तकरीबन कोरोना काल के पीरियड की बात है। जरा आप तवज्जो करें, एक मुल्क है दुनिया के नक्शे पर जिसे कनाडा कहा जाता है, उसी में एक शहर है जिसे टोरंटो कहा जाता है। उसी शहर में एक शख्स है जिसकी उम्र तकरीबन 80 साल है, उसको कुछ बीमारी लायक हुई है, सांस लेने में दिक्कत हुई है। उसके अहलो अयाल ने, उसकी फैमिली ने, उसके घर वालों ने उसे शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तवज्जो रखे, अल्लाह के एहसान को आप देखें, चंद घंटे वो वेंटिलेटर पे रहा है और जब उसको डिस्चार्ज किया गया है उसके हाथ में जब डॉक्टरों ने बिल दिया है वो बिल को देखता है और रोने लगता है, ज़ारो कतार रोता है, चीखे मार के रोता है। जब वो हॉस्पिटल के बिल को देखता है, वहां के खर्च को देखता है, बड़ी तेजी के साथ वो रोता है। पूरा का पूरा अमला उसके इर्द गिर्द आके इकट्ठा हो गया है। नर्स भी कहती है बड़े मियाँ अगर आपको बिल ज्यादा लगता है हम कम कर देते हैं। डॉक्टर कहते हैं अगर आपको बिल की कीमत ज्यादा लगती है, अगर आपको पैसे ज्यादा लगते हैं हम कम कर देते हैं। आखिर आप रो क्यों रहे हैं? रोने की वजह क्या है? तो उस शख्स ने जिसकी उम्र 80
साल है उसने अपने वजूद को समेटा है और समेटने के बाद कहा डॉक्टरों सुनो मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि ये बिल 1.5 लाख चंद मिनट सांस लेने का तुमने मुझे दे दिया है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। उसने कहा सुनो अल्लाह ने मुझे इतनी दौलत दी है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे हॉस्पिटल को खरीद सकता हूँ। अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है, अगर मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा हॉस्पिटल खरीद लूँ, ये मेरी हैसियत है। लेकिन रोने की वजह ये है मैंने जब तुम्हारे बिल को देखा, तवज्जो करे, उसने कहा चंद मिनट मैंने तुम्हारे वेंटिलेटर पे सांसें ली है, तुमने कई लाख का बिल मुझे थमा दिया है। मैं रो इसलिए रहा हूँ कि 80 साल मेरी उम्र हो गई है, इन 80 सालों में मैं अल्लाह की फिजाओं में सांसें लेता रहा, अल्लाह की अदा करदा हवाओं में सांसें लेता रहा जो अल्लाह ने हमें मुफ्त में दी है। उसने कहा चंद मिनट सांसें लेने का इतना लंबा बिल तुमने दे दिया है, अगर अल्लाह ने सिर्फ इन सांसों का बदला मुझसे मांग लिया तो इसकी कीमत मैं अदा कैसे करूं। इसलिए शायर ने कहा था कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। जरा तवज्जो करें, देखें हम सांसें लेते हैं, ये अल्लाह का एहसान है। इसकी कीमत तब पता चलेगी जब ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा, तब पता चलेगी जब ऑक्सीजन की दिक्कत होगी, सांस अंदर नहीं जाएगी, सांस बाहर नहीं जाएगी, उस वक्त आपको पता चलेगा कि अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। देखें आंखें अल्लाह ने दी है, सलामत है, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। हाथ अल्लाह ने आपको दिए हैं, पैर अल्लाह ने आपको दिए हैं, सब सही और सलामत है तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। देखें अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, ये अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, ये अल्लाह का फضل है। और सिर्फ मुसलमान नहीं बनाया बल्कि हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया। और किस उम्मत में, जिस उम्मत में पैदा होने के लिए बड़े बड़े जलीलुल कद्र अंबिया और रसूल ने अल्लाह से दुआ मांगी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी और रसूल है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी ये दुआ है और मेरी ये इल्तिजा है कि ऐ अल्लाह मुझे मूसा बना करके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा कर। देखें अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया। बस एक पैगाम देता हूं आपको, उसके बाद गुफ्तगू को समेटता हूं। तवज्जो करें, ये जो मैंने पूरा माहौल क्रिएट किया है ये इसीलिए किया है ताकि आप समझ सकें जो पैगाम मुझे आपको देना है। ये जो तमीद मैंने बांधी, देखें अल्लाह का कितना बड़ा फजल है, एहसान है। अगर अल्लाह के एहसानात ही पर मैं गुफ्तगू करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह घंटों गुजर जाएंगे, लेकिन अल्लाह के एहसानात को हम गिना नहीं पाएंगे। अगर उलमा लिखना शुरू करें तो किताबें छपती जाएंगी, लेकिन अल्लाह के एहसानात को शुमार नहीं किया जा सकता है। न जाने कितनी ऐसी रातें गुजर जाएंगी, लेकिन कमा हक कहो अल्लाह के एहसानात को बयान नहीं किया जा सकता है। मैंने बस एक इशारा आपके सामने दिया है, आप समझ जाएं कि अल्लाह के कितने एहसानात हैं। देखिए अल्लाह ने हमें और आपको ऐसे अजीम रसूल की उम्मत में पैदा किया है, ऐसे ग्रेट अजीम और ऐसे अजीम रसूल की उम्मत में पैदा किया है, जिसकी उम्मत में पैदा होने के लिए बड़े बड़े जलीलुल कद्र अंबिया और रसूल ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी कि अल्लाह हमें नबी न बना करके मुस्तफा की उम्मत में पैदा कर दे। देखें अल्लाह का कितना बड़ा फजल है कि हमने और आपने ना कोई दुआएं मांगी है और ना कोई इल्तिजा की है, उसके बावजूद अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत में पैदा कर दिया है। आप देखें ये इतने नौजवान हैं हुजूर की उम्मत में है, इल्ला माशाअल्लाह। अभी किसी को खड़ा करके मैं पूछ लूं कि बताएं हुजूर कहां पैदा हुए, मक्के में या मदीने में, वो खामोश हो जाएगा। अगर मैं पूछ लूं बताओ हुजूर ने कितने निकाह फरमाए, कुछ नहीं मालूम है। तवज्जो है, मैं पूछ लूं बताओ हुजूर ने कितने दिन मक्के में गुजारे, कितने दिन मदीने में, कुछ नहीं मालूम है। पूछ लूं बताओ हुजूर को अल्लाह ने कितनी बेटियां अता की, कितने बेटे अता किए, कुछ नहीं मालूम है। पूछा जाए हुजूर ने किस उम्र में ऐलान नबूवत किया, कुछ नहीं मालूम है। लेकिन यही नौजवान है, इनसे पूछ लिया जाए बताओ बॉलीवुड में कौन सी मूवी हिट हुई है, कौन सी फ्लॉप हुई है, वो गिना देंगे। इनसे पूछ लिया जाए बताओ 2025 में कौन सा गाना हिट हुआ है, ये आपको गिना देंगे। इनसे पूछ लिया जाए बताओ आईपीएल में कौन सी टीम चैंपियन बनी है और कौन सी फ्लॉप हुई है, आपको गिना देंगे। कौन सा खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं, कौन कितनी सी कीमत में बिका है, ये आपको गिना देंगे। लेकिन हुजूर की जिंदगी के बारे में पूछ लिया जाए, कुछ नहीं मालूम है। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था पुष्शिगन उड़ गए, बाकी जो बचे बुदगर हैं, उम्मती 22 है, रुसवाई पैगंबर है, हर कोई मस्ती में जो के तन आसानी है। तुम मुसलमान हो ये अंदाजे मुसलमानी है, हैदरी फक्र है नहीं दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। और आखिर में डॉक्टर इकबाल ने कहा था सुनो वो मुअज़्ज़ज़ है जमाने में मुसलमान होकर तुम खार हुए तारीके कुरान। जरा बताएं
آج آپ نہ جانے کس کو فالو کرتے ہیں, کس کے پیچھے چلتے ہیں. یہ نوجوان بیٹھے ہیں, شاہ رخ خان, سلمان خان, عامر خان یا کسی بالی ووڈ کی نچنیا کے بارے میں پوچھ لیا جائے, جوکر کے بارے میں سب گنا دیں گے, اور حضور کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو کچھ نہیں معلوم ہے. ذرا آپ محبت سے اپنے دل کو میرے قریب کریں. ایک مثال آپ کو میں دے کر کے جاتا ہوں اور انشاءاللہ آپ سنیں گے, آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. دیکھیں آج ہمیں حضور کی زندگی کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے, حضور کی زندگی کو سمجھنے کا وقت نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں آج غیر حضور کی زندگی کو اگر پڑھ لے تو وہ اسلام لاتا ہوا نظر آتا ہے. اگر کوئی غیر مسلم حضور کی زندگی کا مطالعہ کر لے تو حضور کی سیرت کو دیکھ کر کے وہ حضور پر کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے, حضور کے اخلاق کو دیکھ کر کے وہ ایمان لاتا ہوا نظر آتا ہے. اور ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں اور جا کے اسے آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر لیجئے گا. دیکھیں یہ حضور کے اخلاق کی دین ہے اور یہ حضور کی کردار کی دین ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھنے والا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. اگر پوری دنیا میں لوگ کسی مذہب میں سب سے زیادہ اس مذہب کو قبول کر کے اس مذہب کو ایکسپٹ کر رہے ہیں تو اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے. یہ جو مذہب اسلام آج پوری دنیا میں پھیلا ہے اور ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے, یہ دین ہے حضور کے کردار کی اور یہ دین ہے حضور کے اخلاق کی. ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں, دیکھیں کس عظیم نبی کا کلمہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں. جتنے لوگ ہیں سب توجہ کریں, سب سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ کو میں دعوت فکر دے کے جاتا ہوں, آپ چاہیں تو اس کو جا کر کے آپ سرچ کر سکتے ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں. ذرا توجہ میری طرف کر لیں. دیکھیں ایک شخص ہے, حضور نے حضور کے بارے میں کہا کیا ہے اور حضور کے بارے میں اس نے لکھا کیا ہے, اسے آپ سن لیں اور اس کے بعد میری گفتگو اختتام کو پہنچتی. توجہ کریں. دیکھیں ایک شخص ہے جس کا نام ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ ہے. کیا نام ہے؟ ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ. دیکھیں یہ ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ کون ہے؟ یہ آج بھی زندہ ہے, 90 سال سے زائد اس کی عمر ہو گئی ہے. امریکہ کا رہنے والا ہے اور یہ تعلیمی اعتبار سے سائنسداں ہے اور اپنے پیشے کے اعتبار سے یہ سیاستداں بھی ہے اور اپنے وقت کا لائر بھی ہے, ایڈوکیٹ بھی ہے, وکیل بھی ہے. بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ کا. اس نے اپنی زندگی میں ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے The 100. آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ نے اس کتاب میں لکھا کیا ہے؟ ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ نے جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لے کر کے اب تک جتنے عظیم لوگ دنیا میں آئے ہیں ایسے 100 لوگوں کو اس نے دنیا سے چھانٹا ہے اور چھانٹنے کے بعد ان کا ذکر اس نے اس کتاب میں کیا ہے. کیا نام ہے؟ ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ. کتاب کا نام آپ سن لیں, The 100. کیا جا کے آپ گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا. اگر غلط ہو تو ابھی میں قیام گاہ پہ رہوں گا, آ کے آپ مجھ سے مل سکتے ہیں. آپ لکھیں گے گوگل پہ جا کے THEHUNDRED آپ لکھیں گے, آپ کو ایک کتاب نظر آئے گی. ذرا غور سے سن لیں. دیکھیں ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ نے اس کتاب میں لکھا کیا, زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے, بس میں اشارہ دے کر کے گزرنا چاہتا ہوں. توجہ کریں, محبت سے بول دیں ایک مرتبہ یا رسول اللہ. ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ جب اس کتاب کو لکھنے کا ارادہ کیا تو پوری دنیا والوں کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ آخر ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ اس کتاب میں 1 نمبر پہ کس کو رکھیں گے, 2 نمبر پہ کس کو رکھیں گے, 3 نمبر پہ کس کو رکھیں گے. بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ یہ مذہباً عیسائی ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کو 1 نمبر پہ رکھیں گے. بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ یہ مذہباً عیسائی ہے تو یہ 1 نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام کو رکھیں گے, موسیٰ علیہ السلام کو رکھیں گے. بعض کا خیال یہ تھا کہ یہ تعلیمی اعتبار سے سائنسداں ہے, یہ نیوٹن کو 2 نمبر پہ رکھیں گے, آئنسٹائن کو 1 نمبر پہ رکھیں گے. لیکن جب یہ کتاب چھپ کر کے منظر عام پر آئی ہے اور دنیا نے جب اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے, آپ بھی جا کر کے اگر اس کتاب کو کھول کے دیکھیں, اس کتاب کے پہلے پیج کو آپ کھولیں تو پہلے پیج پر پہلی سطر میں پہلی لائن میں پہلے پیج پر ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ لکھتا ہے محمد he was only one man in human history, he was supremely successful on both levels religious and secular. ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ لکھتا ہے لوگوں سنو, جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لے کر کے اب تک پوری دنیا میں مذہبی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے اگر کوئی شخص سب سے زیادہ کامیاب ہوا ہے تو وہ مسلمانوں کے رہنما محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. توجہ کریں, بس آخری بات. ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ سے لوگوں نے پوچھا تم نے اسلام کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 1 نمبر پہ کیوں رکھا؟ اس سے کہا گیا تو اس نے کہا سنو تم مجھے دلیل دے دو کون ہے جو حضور سے زیادہ کامیاب ہوا ہو. حضور وہ ہیں جنہوں نے جانوروں کا بھی خیال رکھا ہے, حضور وہ ہیں جنہوں نے پاگلوں کا بھی خیال رکھا ہے, حضور وہ ہیں جنہوں نے غلاموں کا خیال بھی رکھا ہے, حضور وہ ہیں جنہوں نے نوکروں کا خیال بھی رکھا ہے, حضور وہ ہیں جنہوں نے غریبوں کا بھی خیال رکھا ہے, حضور نے ان کا بھی خیال رکھا ہے.
है जिन्हें कोई पूछता नहीं था। उसने कहा अगर तुम मुझे दलील दे दो कोई है जो उनसे कामयाब हो दुनिया में, उसने कहा मैं अपनी रिसर्च को वापस ले लूंगा। आज भी कई साल गुजर गए हैं, कोई कोशिश करके भी किसी को हमारे और आपके हुजूर से ज्यादा, हमारे और आपके आका से ज्यादा अजीम और ग्रेट पेश नहीं कर सका है। और कोई पेश भी कैसे कर सकता है, इसलिए कि हुजूर वो है जिनकी अजमत को खुद परवरदिगार बढ़ाता हो और अल्लाह फरमाता हो वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। मेरा इमाम कहता है सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। ये है हमारे आका। बस आखिरी बात देखिए, ये इस्लाम हम तक पहुंचा है ये किसकी देन है? हुजूर के किरदार की देन है। आप हुजूर की जिंदगी को पढ़ के देख लीजिए, एक वाकया भी कोई नहीं दिखा सकता है, पूरी दुनिया कोशिश कर ले कि हुजूर ने किसी की गर्दन पे रख के तलवार का कलमा पढ़ दे, नहीं। आप देखें 1 लाख कमोबेश 24,000 सहाबे कराम हैं, एक सहाबी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने हुजूर की नमाज को देख करके कलमा पढ़ा हो, हुजूर के रोज़ों को देख के कलमा पढ़ा हो, हज को देख के कलमा पढ़ा हो, नहीं। हुजूर के किरदार को लोगों ने देखा है और कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसा हुजूर का किरदार है। हुजूर ने ऐसा किरदार दुनिया के सामने पेश किया है कि लोगों ने हुजूर के किरदार को देखा, कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गए। आखिरी मिसाल सुन ले, उसके बाद गुफ्तगू खत्म होती है। देखें अल्लाह के नबी है, किसी जंग से वापसी है, किसी गजवे से वापसी है, आप एक दरख्त के नीचे आराम कर रहे हैं, आपकी तलवार जुल्फिकार बगल में रखी हुई है। कौन सी तलवार? जिनके बारे में कहा गया ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार, यानी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा ना बहादुर दुनिया में कोई हुआ है और ना कयामत तक हो सकता है। और जुल्फिकार ऐसी तलवार का नाम है कि उससे पहले न वैसी तलवार आई है और न कयामत तक आ सकती है। हुजूर के बगल में तलवार रखी है। एक यहूदी आया है जो देहात के इलाके का रहने वाला है, गैर मुस्लिम है, उसने हुजूर के बगल से तलवार उठाई है और तलवार हाथ में लेकर के हुजूर को आवाज देके कहता है मोहम्मद आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। हुजूर की आंख खुली है, हुजूर ने देख के कहा अल्लाह बचाएगा, अल्लाह बचाएगा। जब हुजूर ने कहा अल्लाह बचाएगा, उसके हाथ से तलवार छूट गई है। हुजूर ने फौरन तलवार उठाई है और हुजूर ने कहा अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। वो खामोश हो गया है। तो हुजूर ने कहा क्या कलमा पढ़ता है? क्या ये गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? क्या तू ये शहादत देता है कि अल्लाह एक है? उसने कहा जान लेनी है ले लो, लेकिन कलमा नहीं पढ़ूंगा। आपको जान लेनी है ले लो, लेकिन अपने बाप दादा का मजहब नहीं छोड़ूंगा। हुजूर ने कहा जा, तू मुझे कत्ल करने आया था, मैं अपनी जान के दुश्मन को माफ करता हूँ। और इन फरमाते हैं जब वो शख्स अपने कबीले में गया है, अपने गांव में गया है और जाकर के जब कबीले वालों से उसने हुजूर के इखलाक की बात लोगों को बताई है, तो सिर्फ वो शख्स नहीं, उसका पूरा कुंबा, पूरा कबीला कलमा पढ़ करके हुजूर पर ईमान ले आया है। देखिए ये इखलाक है हुजूर का। मेरा इमाम कहता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। माना की ज़मीं को गुलजार न कर सके, कुछ खार तो कम कर गए, गुजरे जिधर से हम, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत।